3, 2, 1. Hi guys, welcome back to Project 2. अभी कर रखा है मैंने स्टार्ट, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तभी चल रही है देख। हाँ ठीक है, बस 2-3 सेकंड गैप था कि एडिट हो जाए इजीली। Hi guys, welcome back to Project to be honest, and today the topic of our discussion would be expectations. So expectations basically societal expectations, family expectations, and your expectations in general, like लोगों को आपसे क्या expectations होती है and like आपको लोगों से क्या expectations होती है. That is what we are going to talk about. And starting with me, I would just like to say, Pavli, तू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? शूट करने दे, फोन में बैटरी कम है, तेरे फोन से शूट करूंगा फिर मैं, अच्छा लगेगा? तो हंसा क्यों रही है? हाँ, मेरे को भी हंसा रही है। दिमाग खराब हो गया क्या? बंद कर। अरे उड़ जा वहां बैठने की, वो तभी एक्शंस करेगी। मत कर यार, फोन में बैटरी कम है, शूट भी नहीं होगा। कोई नहीं। Hi guys, welcome back to the podcast, Project to be honest. Today we have our guest as Divyanka Gupta, Hi the guys. chair of CIY Yuva Chapter Ramanujan, and two co-chairs of our chapter, Suhail and Athal. Today, me the host, I am declaring the topic finally to these guys who have been asking for like the past one week, sorry, कि episode का क्या होने वाला है. So I'm just telling you, the topic of the episode is expectations. So expectations in general, it's about family expectations, like societal expectations. These सारी expectations, like it does crash down on you, and your expectations from yourself and the expectations you hold towards others. So that is what the general topic is about today. And for me, I would say expectations is irrelevant. Irrelevant. Okay. Irrelevant, I would say कि expectations her like different variation पे vary करता है. Yeah. For me, like expectations are more like a priorities for me. Like सामने वाला क्या expect कर रहा है मुझसे, right? For that particular point of time, if I'm working for someone, I'm working in like somewhere else, I will work according to the expectation of theirs. Yeah. So say for example, I'm right here in the podcast. So तेरी expectation मुझसे क्या है? Nothing. अरे right now. So right now, that is the point. Why I call them irrelevant, because I think that putting expectations on someone, it forces and gives them the pressure. Even though इनको पता है कि तुम्हारे पास कोई expectations है, so that is why I think कि expectations या होनी चाहिए तो अपने पास ही रखो, किसी को बता भी नहीं तो मत बोलो कि भाई मुझे तुमसे ये expectation है, because it gives them a pressure. So I never like say कि अगर expectations होगी मैं बोलूँगा नहीं है. I agree with you because I मतलब मैं इतना दिनों से देखते आ रहा हूँ कि every time when you expect anything from anyone, at last तुम्हें like अगर वो expectation तुम complete कर नहीं पा रहे हो, पता नहीं ये क्यों हंस रहे पर उस expectation को तुम वो meet नहीं कर पाते तो it hurts a lot. So I don't think so कि हमें जिंदगी में किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए. इवन दो फैमिली, तुम्हारे पापा भी हो, तुम्हारे पापा से भी तुम्हें कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा काम करना है, उससे वापस तुम्हें क्या मिलेगा. यू शुड नॉट एग्जैक्टली एक्सपेक्ट एनीथिंग. लाइक मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि इवन दिव्यांगन से इससे मेरा बहुत ज्यादा बात होता है तो मैं इसको बताते इससे भी होता है, ये मेरा भाई इससे भी होता है तो मैं इसको बहुत बोलता हूँ कि कभी भी इसका क्या कर्म करो पर फल का चिंता मत करो, जो भगवत गीता कहता है. बिल्कुल. तुम अपने कॉलेज से भी एक्सपेक्ट मत करना कुछ. नहीं करता मैं. I'm telling you, लोग आते हैं फर्स्ट ईयर में, एक साल में पता लग गया. भाई they will like कि हाँ रामानुजन, like मैं नेम नहीं करूंगी preferably, but तुम कभी भी कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में देख, you get in या you met someone, so please don't expect करोगे, you will like hope higher from someone कि हाँ वो तुम्हें एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करेगा, एंड अगर नहीं करेगा वहीं पे ग्रज, वहीं पे गैप अल्टीमेटली आना ही आना है. You know expectations are intangible. They are totally intangible. वहाँ पे ये नहीं कि तुम्हें like food देगा, तुम्हें chocolate देगा, आगे कुछ नहीं होता है सच. तुम expect मत करो, just live the life with flow, I would say. तो अभी जैसे की बात होती है एक्सपेक्टेशंस रेलेवेंसी और इरेलेवेंसी की, तो आई डोंट थिंक हमें इसे हम डिवाइड कर सकते हैं रेलेवेंट एक्सपेक्टेशंस एंड इरेलेवेंट एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो टॉपिक्स आ जाते हैं, दो एग्जांपल्स ले लेते हैं अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए.
वन इज मान लो आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर कैट, और एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये निकाल लेगा, दे एक्सपेक्ट बिकॉज दे एक्सपेक्ट द बेस्ट फॉर मी। तो अगर उसी बात पे अगर हम एक्सपैंड करें तो हमें ये पता चलता है कि इफ़ आई एम लैक्स इन माई प्रिपरेशन, तो आई रिमाइंड माई सेल्फ कि हाँ मेरे मदर फादर मेरे पेरेंट्स ने मेरी फैमिली ने मेरे से एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हें लेट डाउन नहीं कर सकता कि उन्होंने इतनी होप रखी मेरे पे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ जो कि मैं एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ। तो इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी समटाइम्स व्हेन जब भी मैं ऐसा हो जाता हूँ कि भाई अब तो हो गया प्रिपरेशन सही चल रही है, एक्चुअली कभी भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एरर। तो आप एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं दे वर्क एज अ मोटिवेशन समटाइम्स, बट ये फैमिली पर्सपेक्टिव में हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये हो गया पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जो मैंने Yeah. पेरेंट्स की बात करी, ये दीज एक्सपेक्टेशंस मोटिवेट यू। Hmm. बट एक और टाइप ऑफ ये होती है एक्सपेक्टेशंस जो कि अगर आप फ्रेंड्स मान लो, Hmm. कॉलेज बीइंग अ वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आप जानते नहीं हो मेजॉरिटी पीपल के साथ ये होता है जो कि मेरे साथ हुआ था कि मेरा स्कूल का ग्रुप बहुत अच्छा है, वो डिपेंडेंट ऑन देम, मैं उनके साथ ही रहता हूँ, मेरा उनके अलावा कोई ग्रुप था ही नहीं। Hmm. सो आफ्टर दैट जब मेरा ग्रुप उनसे अलग हुआ, I faced a lot of difficulty in college in making friends, in making getting to know people. तो वहाँ एक communication gap, even though everyone expects me and believe कि हाँ मैं बहुत frank हूँ, मैं सबसे बात कर लेता हूँ, I way with people, लेकिन हाँ जब आप बिल्कुल totally नए लोगों से मिलते हो, that is not always the case. So ओवर टाइम जब आप उनके साथ एक रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बिल्ड कर रहे होते हो, तो दे ऑल्सो ऐसे ना एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप बन जाता है कॉलेज में। Yeah. कॉलेज में इवेंचुअली आपको ट्रू फ्रेंड्स बहुत कम मिलेंगे, मतलब मैं किसी को नेम आउट नहीं कर रहा यहाँ पे, अगर कोई भी कॉलेज वाला ये वीडियो देखेगा तो नॉट जस्ट नेमिंग Yeah. एनीवन, बट हाँ कॉलेज में अगर आप देखोगे ट्रू फ्रेंडशिप ट्रू बॉन्ड्स बहुत कम बनते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वहाँ पे सब अपना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम निकालना चाहते हैं। Obviously. सो वहाँ से अगर कोई आपको लगता है कि आपका बहुत एक पर्सनल बॉन्ड बन रहा है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है, बेस्ट फ्रेंड अगर आपको लगता है, इवेंचुअली वहाँ से दूसरा बंदा या फिर आप उस बंदे से एक्सपेक्टेशन लगाने लग जाते हैं, विच इज नॉट राइट। क्योंकि एक्सपेक्टेशन लग जाती है तो उसके बाद यू एक्सपेक्ट या फिर यू वांट द अदर पर्सन वन और द अदर वे कि वो हमारे हिसाब से चले, ये एक्सपेक्टेशंस मेरे पर्सपेक्टिव से नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि दीज आर नॉट राइट। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे एंड जब वहाँ से वो एक्सपेक्टेशन सेम रेसिप्रोकेट नहीं होती, तो इवेंचुअली इट गोज इन बैड डील, वहाँ पे Yeah. लड़ाई Obviously. लड़ाई वगैरह हो जाती है, या फिर देयर आर अ बंच ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स व्हिच आर नॉट राइट। तो आई थिंक हम रिलेवेंसी के हिसाब में उन्हें irrelevant and irrelevant Irrelevant, expectations नहीं relevant बोल बोल नहीं सकते, but it is at a degree. Hmm. What I think is like I exactly do not hold expectations from anything. Hmm. अब I just like मैं जितना काम किया, as you said, कर्म करो खुद फल खुद मिल रहा, तो वही चीज होती है, जितना आप काम करोगे उतना करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्तों से ना एक डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशंस अगर रखनी छोड़ दिया है, क्योंकि इट्स लाइक उनकी भी खुद की लाइफ है, एज यू सेड कि टाइम नहीं दे पाए, इट्स देयर ओन लाइफ, आई डू नॉट नीड टू एक्सपेक्ट देम टू गिव मी टाइम। सेम गोज फॉर आई गेस मतलब जैसे माय स्टडीज नहीं, जैसे कोई अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सो आई डू नॉट एग्जैक्टली कीप एक्सपेक्टेशंस कि जाएगा, आई जस्ट डू इट, चलता जाएगा। सो अगर कुछ ज्यादा ही सक्सेस हो, दैट इज द पॉइंट दैट आई कीप एक्सपेक्टेशंस ऑन। एंड देन इफ expectations towards me I talk about them, I would say कि for example जैसे मेरी family expectations, I love them so much, but जब वो expect करते हैं ना मेरे से कि भाई इतने marks लेके आने हैं, so I do get pressurized, so that is why I find them like not irrelevant but like very difficult to manage them. Not exactly irrelevant, sorry for saying that, but it's very difficult to manage expectations. Societal expectations होती है कि किस डिग्री पे आपको बिहेव करना सबके सामने, फैमिली में होती है कि भाई काम करना है, इतना तो करना ही करना है। then उसके बाद अगर इफ यू जॉइन एनीवेयर, कंपनी ज्वाइन करो यार, कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लो, तो एक डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है। जूनियर्स मेंटेन करेंगे कि कितना फन सीनियर है, कितना काम करवाएगा सीनियर उस चीज पे, वो सारी एक्सपेक्टेशन आप पाइल अप होएगी अगर सारे नोटिस करोगे। सो एट वन पॉइंट यू स्टार्ट नोटिस, सो आई हैव स्टॉप नोटिसिंग द एक्सपेक्टेशंस, आई एम फोकसिंग ऑन द बिगर पिक्चर कि जो हो रहा है होने दो। इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग समवन, दे कैन टेल मी एंड आई विल वर्क ऑन दैट टू, बट आई विल completely ignore the obvious ones जब तक मुझे जाके बोल नहीं रहा, because I am working, if you like those ठीक है, वरना तो नहीं। that is why I find it better. One thing I would like to add कि लोगों की ना expectation, like I have a lot of expectation from myself, like Yeah. मुझे खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें Yeah, हैं obviously. कि मैं ये चीजें करूंगी, even for like same case in the case of Athar also and Soil also, दोनों को ये भी होगा कि हाँ भाई कोचर बने हैं दोनों के दोनों, so they need to fulfill something ना। मैं भी इनसे Yeah. कुछ ना कुछ देखती हूँ कि हाँ अब like I was the coacher, now I am the chair, but now I expect कि both of them to contribute completely, like dedicatedly तुम
कंट्रीब्यूट करो युवा हम्म। को, बिकॉज मैंने कर दिया है अब। Yeah. ऐसा है कि मेरी एनर्जी ना एकदम ड्रेन हो चुकी है Yeah. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अब मैं एकदम ड्रेन हो चुकी हूँ, तो आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम कि हाँ ये कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर तुम खुद से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो, कहीं ना कहीं तुमने एक्सपेक्टेशन रखा, अगर तुम उनको मीट नहीं करते हो ना, तो वहीं पे तुम्हारा मोरल डाउन बहुत होता है। yes, and मेरा बहुत हुआ बिकॉज मैं गोल सेट करती हूँ, एंड यू नो हर किसी के लाइफ में इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दे हैव लाइक विजन बोर्ड, Yeah. लाइक विजन बोर्ड 2025 सबने बनाया होगा, एंड दे हैव सर्कल द मार्क कि हाँ भाई किसके आगे कंप्लीट कर रखा है, ये right? चाहिए ही चाहिए इस ये साल चाहिए ही मुझे। चाहिए, ये चाहिए। मेरे में था कि आई वांट टू बी द चेयर, चलो ठीक है कर हो गया। लेंगे, हाँ हो गया कोई नहीं, Great. बट फिर हाँ फिर The delayed response. हाँ तो फिर वही है कि ओके हाँ, Continue. मतलब वही है कि देखो एक्सपेक्टेशंस रखो, होप्स रखो। ये नहीं है कि देखो होप पे दुनिया कायम है, लोग बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, तुम किसी से रिलेशंस बना ही नहीं पाओगे। That is true. ठीक है? और That is उन very true. उम्मीदों से ही, एक्सपेक्टेशन से ही, होप से ही ना रिलेशनशिप ना स्ट्रांग बनता है। That is true. ऑब्वियस मैं उसको लाइक नेग्लेक्ट करो, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा रखो, बिकॉज वो होता है कि हाँ तुम साथ में हो। इवन लाइक मैं अंजन से बहुत एक्सपेक्ट करती थी, ठीक है, और इसने वो फुलफिल भी करा है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, एंड नाउ ही इज द असिस्टेंट शो, ठीक है, ओके राइट। अरे कोई नहीं गाइस, कैमरा के पीछे हमारी दूसरे असिस्टेंट चेयर बैठी So है। we have तो our second कोई नहीं, assistant कोई नहीं। chair behind the Yeah, camera, she's behind the Pavni camera. Agrawal. And मैं एक बहुत जेन्युइन पिक्चर यहाँ पे शो करना चाहती हूँ कि पावनी इज द वन की जो लाइक बहुत छुपके से किसने काम करा है, बहुत प्रोडक्टिव रही Graphics है, में। हाँ ग्राफिक्स में The बहुत most छुपके hectic से काम department. करा है, but now she's No one expected that Pawni would be the assistant chair. Right. Even I think Pawni भी expect नहीं की थी. हाँ इसको जब मैंने रिजल्ट बताया, she was like क्या मैं, आप Expected मजाक ही कर रहे हो, ना तो कभी होगा तो बता दो कोई मजाक shit. कर रहे हो, वही तो खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी तेरे को उस टाइम, बट नाउ तुझे वो मिल गया है, सो लोग यू चीयरिंग फॉर इट, Yeah. हाँ यू आर एमिंग फॉर इट, सो Yeah. यही है, एक्सपेक्टेशंस शुड बी देयर, बट उनको ओवरपावर मत करो अपनी लाइफ में, Obviously. बस ये। वैसे अगर बात किया जा रहा है कि हम कह रहे थे कि मैं दूसरों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हाँ। अब बात आ रहा है कि लोग तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक इफ यू हैव टेकन अ रोल, लाइक अगर तुम एक बाप का बेटा हो तो यू हैव टू fulfill those expectations which your father is expecting. Guys, just so you know, Suhail Bhaiya is from Karnataka, so उनकी थोड़ी हिंदी, उनकी मैंने हिंदी क्या थोड़ी बोला? कच्ची है, मैंने उनकी क्या हिंदी बोला? थोड़ी कच्ची है, so इसलिए थोड़ा वो हो गया गलत। अरे वही यार। तो मुझे अभी शर्म आई। कोई नहीं, पास द माइक। Continue, guys, हो गया। ओके, हो गया, cool. बाप बेटे का रिश्ता छोड़ दिया। अभी आई एम अ कोचर, इज अ चेयर, असिस्टेंट चेयर, तो भूल गए, Assistant chair. वापस भूल गए। असिस्टेंट चेयर। तो जब हमने इस रोल को अपनाया है तो इट मींस कि हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आया है। सो कि अगर कोई सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तो वी हैव टू फुलफिल इट। Yeah, obviously. एक्सपेक्टेशंस, That is what I said. अगर ब्लाइंड होगी तो फिर मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, मैं रोल सजेस्ट रोल, बट अगर इफ समवन सेड आई विल फुलफिल दैट, तो वो प्रेशर आ जाता है, वो आता है। यस, वही अगर हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें हाँ। दूसरों से, पर अगर कोई हमसे Correct. वो एक्सपेक्ट कर रहा है एंड वी हैव टेकन दैट रिस्पांसिबिलिटी, आई थिंक वी शुड फुलफिल इट। Obviously. सो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, तो इवेंचुअली एक्सपेक्टेशंस जो आपको कैसे एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए, आई वुड जस्ट एडवाइस एवरीवन कि आप जिससे भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो बहुत सोच समझ के लगाओ, बिकॉज यार कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ फॉर कॉन्टेक्स्ट, कुछ लोग ना अपने पास में गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। प्राइम एग्जांपल, तो इसलिए तो जस्ट मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी एफर्ट्स डाल रहे हो तो एफर्ट्स आप सोच समझ के डालो, बिकॉज इवेंचुअली आपके जो एफर्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो आपको जानता है, नॉट एवरीवन डिजर्व्स दैट। एफर्ट्स इज समथिंग जो कि आपको सोच समझ के बहुत ही क्लोज लोगों से लगाने चाहिए, जिनका आपको पता है कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन दे विल स्टैंड बाय योर साइड। सो अगर आप कहीं भी एफर्ट लगा रहे हो जो कि आपको पता चल रहा है कि गलत है, आप ओवर एफर्ट लगा रहे हो, दूसरी जगह से कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, तो गाइस प्लीज वो चीज छोड़ दो
मेरी तरह थोड़ा लंबा मत खींचो से कि Obviously. आपको इवेंचुअली एक पॉइंट I आ guess जाए इधर कि ये सारी एक्सपीरियंस सबका एक्सपीरियंस है थोड़ा थोड़ा. कि आपको बहुत लेट रियलाइज हो एंड Hmm. eventually you realize that you wasted a lot of efforts and a lot of time on a single person. So just don't do that. Move on. And इवन कॉम्पिटिशन में कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए प्राइस की. हमने कुछ कॉम्पिटिशन में देख लिया हम सबने जॉइंटली. Studies में भी, हाँ. शुड बी मतलब ऐसा है कि कंटिन्यू गाइस मेरे ये कहने का मतलब है नॉट फ्रॉम द पर्सन ओनली बट लाइक तुम्हें स्टडीज में भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लाइक अंजुन की लाइक मल्टीपल टाइम्स आई हर्ड फ्रॉम हिम कि हां मेरे को 7+ सीजीपीए है 7+ सीजीपीए अच्छा ये मेरी 7+ है मेरी 7 है मेरी कोई नहीं 7+ चाहिए बस. हाँ वही 7+ चाहिए. सो स्टडीज में भी भाई जैसे अंजुन का ये पॉइंट बहुत सही है कि अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो किसी से तो लाइक तुम प्रेशराइज कर रहे हो Yeah. अल्टीमेटली यू आर इन प्रेशर बट वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो प्रेशर हेल्दी है कि अनहेल्दी है एज अथर मेंशन कि जहाँ पे लाइक तुम्हें एफर्ट्स रॉन्ग पर्सन के लिए नहीं डालना नहीं है डालना भले है. वो लाइक आफ्टरवर्ड्स बहुत बाद में रियलाइज होता है बट फिर तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये मिस्टेक्स तुम्हें रिपीट नहीं करनी. सो इट जस्ट कि तुम लाइफ में जब तक वो चीज एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तब विल तक नेवर कुछ गेट नहीं टू नो कि वो सही है कि गलत. Obviously. सो यही है यार कि एक्सपेक्टेशंस होप्स प्रेशर लाइफ पर्सन राइट पर्सन सब रॉन्ग कुछ पर्सन सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है. राइट सबका बिल्कुल अलग POV perspective है सबका. एंड टाइम आल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. Obviously. ठीक है तो तुम किस फेज में हो उस टाइम तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इट हाँ. आल्सो मैटर्स. मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एक्सपेक्टेशंस आप समझ जैसे पर ईयर जैसे होते हैं नए एक्सपेक्टेशन फॉर मी आई वुड से ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप सोसाइटल स्टीरियोटाइप होता है ना राइट बनिया का बच्चा है धंधे में बैठेगा वो क्या कहता है वही हाँ. आगे बिजनेस आएगा आई विल टेल यू दिस वन थिंग मेरे दादू वांटेड मी टू गो इनटू पॉलिटिक्स मैंने माना पॉलिटिक्स में से होगी दादू पॉलिटिशियन है ठीक है सो थोड़ा है वो पॉलिटिक्स में तो दादू मैंने मना कर दिया तो दादू प्रमोट काइंड ऑफ लाइक मोटिवेट्स मी खुद का स्टार्ट कर एंड आई डू गेट मोटिवेटेड 11th क्लास में मेरा खुद का वो था क्या कहते हैं स्टार्टअप था सो आई डू गेट मोटिवेटेड बिकॉज आई डू नॉट वांट टू बी दैट स्टीरियोटिपिकल बनिया औलाद I want to be someone who is like who can be proud of himself because I want to break all this. मैं जितना आप सोचो what technically speaking what need do I have to get a degree? मेरे पापा का बिजनेस है पूरा सक्सेसफुल बिजनेस है I can just go for it I will learn there हो गया but what is the need of me taking part in so many societies building a great CV and then doing something you're about to stand on your but I want to start something of my own I just want to do something of my own before going forward to that because I want to showcase कि हाँ मैं उसके लिए capable हूँ पहले से ही it's not getting handed over to me because लोग सोचते हैं कि हाथ में मिल रहा है तुम्हें no I just want to show कि मैं capable था इसलिए मिल रहा है मुझे so that is what I hold as my expectation towards myself बनियों के लाइक क्या रहता है कि उनको रहता है इसको क्या चिंता है Yeah. तो पका पकाया माल है पका पकाया बिजनेस चल रहा है वही ऐसा नहीं होता इवन मैंने इतनों से सुना है कि दे लाइक यार तू तो फेक बनिया है मुझे तो इतनों ने बोले कि तू तो फेक बनिया है ये खुद बोलता है मेरे को कि तू तो फेक बनिया है सो इट्स जस्ट कि तुम्हारा अपना वे है लाइफ को लिव करने का yeah obviously अरे लाइफ बाबा। को जीने का तुम्हारा खुद का अपना वे है बीइंग यू बनिया हो या तुम नॉन बनिया हो यार क्या ऐसे नहीं करते यार बनियों की वजह से नहीं करते भाई गाइस यार। दोनों को पकड़ लो तू बोल किसे माइक छीना था ना मैंने बोल नहीं अब मैं उस टॉपिक के इतना नहीं बोल रहा कोई बात नहीं सही है। कोई नहीं थोड़ा क्राई हो जाएगा ये 12:30 वाला मोड के लिए बैटरी है फोन में कैमरा बैटरी Guys, मैं आपको लोग कंटेक्स्ट दे देता हूँ 12:30 मोड इज इंटेलेक्चुअल मोड यस लेंगे मैं जैसे ही 12:30 वाला मोड 12:30 भाई के 8 मिनट की वॉइस नोट आती है 12 बजे को 12:30 होती जैसे मूड शिफ्ट्स अगर सबने अपनी इंस्टाग्राम फीड देखी होगी 11:59 हैप्पी रील्स 12 बजे दुख स्टार्ट हो जाता रील में बिवेर भाई बिवेर ध्यान रखो इंस्टाग्राम मत चलाओ ज्यादा या आई वुड से देखो एक्सपेक्ट Content चाहिए मैं और देख सकता हूँ। आप तीनों के साथ बैठ के ना ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन वो लास्ट वाली उससे भी कॉन्वर्सेशन लंबी चल जाएगी बट अगर अभी हमने अगर अभी बैठे बहुत हैं- लंबा चलेगा ये तो 12:30 वाले 8 मिनट की वॉइस नोट भेज रहे होते हैं जस्ट आई गॉट टू नो दैट टुडे बट हाँ सो आई वुड से लाइक आई थिंक वी नीड टू ड्रॉ कंक्लूजन राइट हियर बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिट भी नहीं है हमारे पास कैमरा में बैटरी भी नहीं है एंड दिस कॉन्वर्सेशन विल गो एन आवर लॉन्ग सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि एक्सपेक्टेशंस की रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन
एंड मेरे लिए एक ऐसा है कि लोगों से नहीं रखता मैं, बिल्कुल नहीं, बट मेरे से कोई रखता है, आई विल 100% फुलफिल इट. जैसे आपने कहा था, आई फुलफिल्ड इट एंड आई विल मेक इट श्योर कि मैं फुलफिल करूं उनकी एक्सपेक्टेशंस. And the other thing I would like to add to your conclusion is कि आप किसी expectations मत रखो. Main point being, लोगों आपसे expectations है, उन्हें fulfill करो. Parents, families, close friends, which are gonna be there in difficult times. आप उनकी कोई भी expectation है, they expect you to do good, do good. You have to stand in front of them and say कि हाँ भाई तू expect कर रहा था, मैंने ये करके दिखाया. But आप कभी दूसरे बंदे से expectations मत रखो, चाहे वो जितना भी close हो. फैमिली इज अ डिफरेंट मैटर, बट आप किसी और से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपके लिए क्या करेगा, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करो कि वो काश मेरे लिए करता. जस्ट स्टैंड ट्रू टू योरसेल्फ एंड जैसे कि हम स्टार्टिंग में बोला था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो. I guess this is it. That's it I guys. guess. Good Thank ending you so line. much, Good ending guys. line. Bye.